Hi dear students, today we are going to start a series of videos in which we are going to talk about your A levels A to P5. As you know that this P5 paper is of 30 marks and the title is Planning, Analysis and Evaluation. So in this paper, you need to plan an experiment. You are given with a certain data and you have to do analysis of that given data. For this 30 marks paper, the first 15 marks they comprise of experimental designing. Actually, you are given with a certain set of data. You're given with a certain situation in which there are some certain things, certain steps planned for you, and you have to go further. You have to add on things. So, if you are aspiring to become a scientist in future, this paper is really important for you. And in my observation, in my over a decade of experience of A-level teaching, I have came to this conclusion that this is one of the most scoring papers of your A-levels biology syllabus. So let's talk about it. We are going to design an experiment along with you and you will learn कि हमें इसके अंदर क्या-क्या चीजें चाहिए होती हैं. We will go into a little detail in this experimental setup so that you don't miss anything while attempting your papers. So let's talk about it. So as I've already told you that this paper comprises of 30 marks and this experimental designing part is of the 50% weightage in this paper. Let's talk about an example. Consider yourself a plant scientist and you have made a certain fertilizer. Let's name it slate fertilizer. Now, you are of this view that your fertilizer helps the plants to grow better. And plant growth means root and shoot growth. When we talk about plant growth, that means that we are talking about the root and shoot length, root and shoot growth in the minimum possible time. The plant that is showing maximum growth of root and shoot that is considered to be, better growing. So आपने एक फर्टिलाइजर बनाया है, उसका नाम है फर्टिलाइजर स्लेट, और आपका ये व्यू है कि ये हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट आई हाइपोथेसिस. Now, what is a hypothesis? Hypothesis is a tentative explanation or you can say it is simply an expectation. In science, your expectations they are written in the form of a hypothesis. So we have a hypothesis. So for the first a couple of marks, for 1 or 2 marks, you need to make a hypothesis. You need to take care that your hypothesis should be very clear with very simple words conveying your whole solely message. So for this, we can make a hypothesis that fertilizer slate helps to promote the plant growth. So this is our hypothesis. There is another thing which is called a null hypothesis. So null hypothesis is exact opposite of the hypothesis. So इसका null hypothesis क्या बनेगा? इसका null hypothesis ये बनेगा कि fertilizer slate has no impact
on plant growth promotion. So if your experimentation rejects your null hypothesis, that means that your hypothesis is accepted. And if your explanation proves your null hypothesis, that means your hypothesis is accepted. Right? सो आपको काम करना होता है हमेशा नल हाइपोथेसिस के ऊपर एंड और हमारा नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि दिस फर्टिलाइजर स्लेट इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ प्रमोशन. तो सबसे पहले जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हो उसके बाद बेटे यू नीड टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स. एज यू गाइज नो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. वन इज dependent variable and the other one is independent variable. In this case अगर हम इस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने वाले हैं तो इस केस में क्या चीज किस पर डिपेंड कर रही है. एक्चुअली प्लांट ग्रोथ प्रमोशन डिपेंड कर रही है फर्टिलाइजर के ऊपर. सो हमारा फर्टिलाइजर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारी प्लांट ग्रोथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. प्लांट ग्रोथ इज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट वी आर गोइंग टू ऐड. So for 2 marks, you need to identify the types of variables which are involved in your experiment. और ये confirm questions होते हैं, ये हमेशा ही पूछे जाते हैं. पहले नंबर पर you need to make a hypothesis or a null hypothesis. For second part, you need to make dependent and independent variables. जब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बना लोगे उसके बाद वो आपको 5 या 6 मार्क्स के लिए, मैं साथ साथ इसके मार्क्स भी मेंशन करता चला जाता हूं. 2 मार्क्स के लिए वो आपको हाइपोथेसिस बनाने के लिए कह सकता है. 2 मार्क्स के लिए वो आपको कह सकता है कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का बताना है. उसके बाद बेटे 6 या 7 मार्क्स के लिए वो आपसे एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स पूछ सकता है. अब इसमें आपको जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स देनी है, आपको ऐसे अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है कि वो किसी नए आदमी के लिए 100% डूएबल हो और उसके अंदर सारी की सारी चीजें शामिल हो. सो अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर प्रोसीजर. अब हम अपने प्रोसीजर की बात करने वाले. प्रोसीजर में बेटे आपको 3 चीजों का खास ख्याल रखना होगा. नंबर 1, यू नीड टू टॉक अबाउट अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट. नंबर 2, you need to talk about your constants. And number 3, you need to talk about reliability of your experiment. इसके अंदर आपको repetitions की बात करनी होगी. मैं आपको ये बताता चलूं, you might be familiar with these things in your O levels. जब आप कंट्रोल इंश्योर करते हो, when you ensure control, तो आप अपने एक्सपेरिमेंट को वैलिडेट कर रहे होते हो. यू इंश्योर द वैलिडिटी इन योर एक्सपेरिमेंट्स. जब आप कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर रहे होते हो तो यू इंश्योर द एक्यूरेसी. और जब आप रेपिटेशंस कर रहे होते हो तो यू इंश्योर द रिलायबिलिटी. आपको अब अपने इस डिटेल प्रोसीजर के अंदर इसकी वैलिडिटी, इसकी एक्यूरेसी और इसकी रिलायबिलिटी, इन तीनों चीजों पर काम करना पड़ेगा. सबसे पहले देखते हैं कि हम इसके अंदर कंट्रोल क्या लगाएंगे. आपको यह कहना है कि आप एक सर्टेन स्पीशी का प्लांट सेलेक्ट करोगे. यू विल सेलेक्ट अ प्लांट ऑफ सर्टेन स्पीशी. अब आपके कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आएंगे. नंबर 1, कांस्टेंट से पहले हम ये बात करें कि यू नीड टू इंश्योर द कंट्रोल. आपके पास एक सेटअप लगेगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप और एक सेटअप लगेगा कंट्रोल सेटअप. सो दिस इज गोइंग टू बी योर
experimental group, and this is going to be your control group. Now let's talk about the constants. For constants, आप सबसे पहले ये बताओगे कि आप दोनों में सेम प्लांट स्पीशीज सेलेक्ट करो, सेम प्लांट स्पीशीज सेलेक्ट करो। नंबर 2, आपको यह बताना है कि आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल सेटअप का सेम एरिया अप्लाई करो। मैं आपको बता दूं कि जिन जिन चीजों में यू कैन डू चीटिंग इन ऑर्डर टू इंश्योर द कॉन्स्टेंट्स एंड कंट्रोल्स, आपको वो सारी की सारी चीजें कॉन्स्टेंट्स में डालनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर देयर टू प्रूव कि आप अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के जो प्लांट्स हैं जिसको आप फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसके अंदर आप ये स्लेट फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे और कंट्रोल के अंदर आप फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करोगे। रेस्ट ऑल द कंडीशंस सेम, ऑल द कंडीशंस आर सेम, यहां पर भी ऑल सेम कंडीशंस। सबकी सब सेम कंडीशंस अप्लाई करोगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर आप फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे और जो आपका कंट्रोल सेटअप है उसमें आप फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कांस्टेंट्स। आप सेम प्लांट स्पीशी इंश्योर करोगे, और ये सेम सेम प्लांट स्पीशी आप कैसे इंश्योर करोगे? आप किसी जीन बैंक से या आप किसी सीड बैंक से ये स्पीशी लो, ताकि आपको पता चले कि आप दोनों सेटअप्स के अंदर सेम प्लांट स्पीशी लगा रहे हो। नंबर 2, आप सेम एरिया अप्लाई करोगे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल अगर आपका फॉर एग्जांपल 10x10 का प्लॉट साइज है, तो आपका जो कंट्रोल होगा वो भी 10x10 का ही साइज होना चाहिए, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप उसकी मेजरमेंट्स करें, ये नहीं कि अंदाजे से। अब ये जो मैं ग्रीन पार्ट पे लिखता जा रहा हूँ ये एक्यूरेसी मेजर्स हैं, और जो मैं ब्लैक पार्ट पे लिखता जा रहा हूँ ये कांस्टेंट्स हैं। और आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं इस 6 to 7 वाले एरिया में इन कांस्टेंट्स के ही मिलते हैं। हम तो इस एक्सपेरिमेंट में एज मच एज कांस्टेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट आपके पेपर में दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू गिव एटलीस्ट 4 to 5 कॉन्स्टेंट्स। सो अगर आप 4 to 5 कॉन्स्टेंट्स वहां पर अप्लाई कर जाते हो, दे जाते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फुल मार्क्स के लिए। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि एक चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं हम वो सबके सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सेम प्लांट स्पीशी होनी चाहिए, सेम एरिया होना चाहिए एप्लीकेशन का, उनको सेम टाइम ऑफ सोइंग होनी चाहिए, जो आप सीड्स लगा रहे हो वो सेम टाइम पे होने चाहिए, सेम क्वांटिटी ऑफ सीड्स। अब ये सेम क्वांटिटी इंश्योर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप सीड्स को काउंट कर सकते हो, आप सीड्स को वे कर सकते हो। ठीक है जी, आप वे करें तो भी आप एंडोस्पर्म वे करें तो आप काउंट भी कर सकते हो, वे भी कर सकते हो। और इसके लिए आप क्या तरीका यूज कर सकते हो? आप सीव यूज कर सकते हो, आप टॉप लोडिंग बैलेंस यूज कर सकते हो। सो ये वो तरीके हैं जिससे इसके अंदर एक्यूरेसी मेक श्योर हो रही है। आप सीड काउंटर यूज कर सकते हो, आप टॉप लोडिंग बैलेंस यूज करते हो, आप सीड्स को वे करके डालो। अगर एक पाव सीड आपने एक प्लॉट में डाला तो दूसरे प्लॉट में भी एक पाव सीड ही डालो, ताकि एंडोस्पर्म जो जा रहा है यानी जो फूड फॉर द एम्ब्रियो जा रही है वो सेम जाए। ठीक है जी, सेम सीड क्वालिटी, सेम सीड एज होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर आपने डाल दिए फ्रेश सीड्स और अपने कंट्रोल ग्रुप में आपने डाल दिए पुराने सीड्स, देन उसके बाद सेम वाटर अवेलेबिलिटी, पानी सेम अवेलेबल होना चाहिए। अब सेम वाटर अवेलेबिलिटी की आप एक्यूरेसी कैसे मेक श्योर कर सकते हो? आप सेम टाइम ऑफ वाटर कर दो, या अगर आप ग्रीन हाउस में कर रहे हो तो आप वाटर की क्वांटिटीज को
मेजरमेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप मैयर कर लो पानी को कि इतने इतने लीटर पानी इसमें जाएगा, इतने इतने लीटर पानी इसमें जाएगा। या अगर आपके पास कोई टैप है तो आप टैप के ऊपर टाइम काउंटर लगा सकते हो कि 15 मिनट के लिए इसको पानी लगा, 15 मिनट के लिए इसको पानी लगा। हमारे देहातों में जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ओवर द टाइम हो रही होती है कि 10 मिनट उसकी फसल को लगेगा, 10 मिनट उसकी फसल को, 10 मिनट उसकी फसल को, एंड इट वर्क्स लाइक दिस। अच्छा जी, सेम वाटर अवेलेबिलिटी कर दी, उसके बाद सेम लाइट अवेलेबिलिटी। ऐसा ना हो कि आपने एक ग्रुप को दरख्तों की छांव में लगा दिया है और दूसरे ग्रुप को आपने ओपन लाइट दे दिया। ओपन लाइट वाले ज्यादा बेटर ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो सेम लाइट में भी आप मेक श्योर कर सकते हो। देन सेम सॉइल कंडीशंस, ठीक है जी, आपकी सॉइल कंडीशंस भी सेम होनी चाहिए। सो इस तरह आप बहुत सारी चीजें, हाँ, सेम डेंसिटी ऑफ सोइंग। ऐसा ना हो कि एक के अंदर आप क्राउडिंग कर दो, ठीक है, और एक के अंदर आप इक्वी डिस्टेंट पौधे लगा दो, तो वो भी एक चीटिंग हो जाएगी। पौधों का जो आपस का डिस्टेंस है वो भी दोनों में सेम होना चाहिए। सो आई थिंक ये काफी सारे कॉन्स्टेंट्स हमने अभी तक डिस्कस कर लिए। आप ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स डिस्कस कर रहे हो, आपने कंट्रोल कैसे इंश्योर कर दिया, आपने एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप लगा दिया, आपने एक्यूरेसी और कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस कर लिया। अब एंड पर आपको ये तरीकाकार भी बताना होगा कि आप कैसे कंक्लूजन के ऊपर कैसे आओगे, किस तरह से कंक्लूड करोगे। रिजल्ट्स का कैसे पता चलेगा? अब इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं। नंबर वन, आप पौधों का ड्राई मास जो है उसको कंपेयर कर सकते हो, आप पौधों का वेट मास कंपेयर कर सकते हो, आप पौधों की शूट लेंथ को कंपेयर कर सकते हो, आप पौधों की रूट लेंथ को कंपेयर कर सकते हो, आप पौधों के जो झाड़ होता है यानी वो कितना ज्यादा अपनी ब्रांचेस कर रहे हैं, काउंट ऑफ ब्रांचेस को कंपेयर कर सकते हो। आप कोई भी तरीकाकार एम्प्लॉय कर सकते हो जो आपको सूट कर रहा है, जो इजी टू यूज है। अब वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि आप अपने इस एक्सपेरिमेंट को रिलायबल कैसे बना सकते हो। सो एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी के लिए आपको क्या करनी है, आपको रेपिटेशंस करनी है। आपने अगर 4 कंट्रोल ग्रुप लगाए या 5 कंट्रोल ग्रुप लगाए तो आप 5 के 5 ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स लगाओ। और उसके बाद आप इन सब की एक एवरेज उठाओगे, और जब आप एवरेज कंपेयर करोगे, अब इस एवरेज में अगर आपके पास नॉन फर्टिलाइजर जिनको आपने स्लेट फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं किया था उनकी रीडिंग्स में, और जिसमें आपने स्लेट फर्टिलाइजर अप्लाई किया था उनकी रीडिंग्स में, इफ देर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस, तो आप उस डिफरेंस को कोट कर सकते हो, आप उस डिफरेंस के ऊपर कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो। सो यहाँ पर आपके पास रिलायबल होगा ये रिजल्ट। हाँ, और अगर इसके अंदर आपके पास कोई आउटलाइन ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं, if you are getting some outline observations तो you can ignore it, you can simply ignore it, आप उसको इग्नोर कर दें। अब आखिरी चीज जो आमतौर पे इसके अलावा पूछी जा रही होती है वो होती है प्रिकॉशंस, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और ये प्रिकॉशंस भी बेटे 2 to 3 मार्क्स की पूछ ली जाती हैं। एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन भी आमतौर पे 2 to 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ये एग्जामिनर की अपनी मर्जी होती है वो किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो ही मे आस्क यू अबाउट एनीथिंग
about the acceptance or rejection of hypothesis. He may ask you, he may give you a conclusion that after doing so things, ये result आया. Then he will ask you, now would you accept this hypothesis or would you reject this hypothesis? तो आप उसमें अपना बता सकते हो कि आप इसको accept करोगे या reject करोगे. और उसके बाद आपको प्रिकॉशंस बतानी होंगी. तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हाई रिस्क था या लो रिस्क था, और आप उसमें कोई सी भी 2-3 चीज़ें बता सकते हो कि आप क्या क्या काम करते हुए एहतियात करें. अगर आपको कोई चीज़ में कटिंग करनी है तो आप एहतियात करें, कोई केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है तो आपकी आंखों में ना पड़ जाए, हाथों को प्रॉपर तरीके से वॉश करें, लेटेक्स ग्लव्स पहने, आप लैब इक्विपमेंट पहन कर ये सारा का सारा काम कर रहे हो. वो एक सिचुएशनल चीज़ होती है, आप सिचुएशन से डिसाइड कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइनिंग. लेट मी गिव यू अ रिव्यू जो कि अभी हमने पढ़ा. हमने आपको बताया कि आपको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले एक हाइपोथेसिस देना है, फिर एक नल हाइपोथेसिस देना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मेंशन करना है, और हो सकता है आपको वो लॉजिक भी पूछ ले, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का लॉजिक क्या है. फिर उसके बाद प्रोसीजर में आपको 3 चीज़ें ज़रूर बतानी है. नंबर 1 वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. वैलिडिटी के लिए आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट लगाओगे, एक्यूरेसी के लिए आप कॉन्स्टेंट्स इंश्योर करोगे जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रिलायबिलिटी के लिए आपको एवरेजेस लेनी होंगी, और एंड पर आपको प्रिकॉशंस बतानी होंगी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आने वाले सेशंस के अंदर आपके साथ कुछ 5 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा, आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें पेपर में, एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से डील करना है. आई होप कि आपको इसकी खूब अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हमारी नेक्स्ट वीडियोस में वी विल टॉक अबाउट ऑल द स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स. हम उसमें काई-स्क्वायर टेस्ट, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, पियर्सन्स कोरिलेशन, टी टेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह उनको डिस्कस करेंगे. और इन 5-6 वीडियोस को देखने के बाद आपको 100% आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू स्कोर योर मैक्सिमम मार्क्स इन योर P5 पेपर. थैंक यू वेरी मच. स्टे विथ स्लेट.